chapter, human capital formation. So human capital formation, that is included in the concept of current challenges facing our Indian economy, in which first we have read about the poverty. Now we are coming to human capital formation. Now, first of all, explain you what is human capital formation. Human capital formation means the humans which are healthy and which are literate, which contribute something to the society, which earn in the society, which earn from their families, are a capital for a country. Okay, because if humans are ill, they are not able to work, or they are means they are not healthy, then it is not possible for the country to take their burdens, because even if a person is a paralyzed person, he is a burden for his family also and for his country also. So as the humans, it is necessary that they should be a capital. And how the humans will convert to a capital? By spending money of them, that the children from the very as the child takes birth, it is necessary that vaccination should be given to them, proper diet should be given to them, they should not be suffering from the malnutrition. The well-to-do families can do it very well, but what about those who are from the poor families? For those people, the government had make arrangement for their treatment, for the even for the delivery of those women in the government hospitals, and also the vaccination is also being given in the government hospitals, and also in the government schools also, as a midday meal is being provided. Through that sources also the government covers the problem of this malnutrition. So now, just starting with the chapter, so as the humans are a very important part of the society, because unless and until humans are not there, all the resources are useless. Land is useless, because if no one is cultivating on that land, how the land will be used? It's the humans, use the human capital, who use the capital, who use the land and take the best out from it. All the machines, all the physical capital is useless. Schools are useless as you are not there, teachers are not there. So anything, any capital, when the best has to be extracted from that capital, it is necessary that humans, the intervention of human is necessary. Okay, for every work, for any country to get developed, for any economy to get developed, it is necessary that the role of humans is very necessary. Okay, so it is a compulsion for every country that the human capital formation should be a proper task, and that should be initiated, that should be taken very well, that should be sorted out very well. Okay, just see this definition, a very nice definition is written on page number this 5.1. A nation's true wealth is neither in its land and water, nor in forests and mines, nor in its flock and herds, nor in dollars, but in its wealthy and happy men, women and children. Okay, means अ ट्रू वेल्थ मीन्स जो एक सच में एक वेलफेयर है, या जो खुशहाली है, वो किसी भी देश की ना तो जमीन में है, ना ही पानी में है, ना जंगल में है, ना ही उसकी माइंस में है, ना ही उसकी फ्लॉक्स यानी कि जो इतने जानवर इकट्ठे हो रखे हैं, ना ही उसमें है, ना ही पैसे में है, लेकिन किसमें है? वेल्दी एंड हैप्पी मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो संपन्न या जो स्वस्थ और संपन्न मेन है, विमेन है और चिल्ड्रन है, मीन्स सब कुछ जो है खुशहाली है, वो सिर्फ परिवार से होती है, वो सिर्फ लोगों से होती है। जैसे कहते हैं ना, एक घर तब वो मकान रहता है जब तक उसमें लोग नहीं रहते हैं, है ना, वो घर तब बनता है जबकि उसमें इंडिविजुअल्स रहने के लिए आते हैं। तो इसी तरीके से ह्यूमंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, जो कि इकोनॉमी को रन करने में हेल्प करता है। हमारे जो सारे वो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है फ्रॉम द कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब कैसे कंडक्ट होता है? दैट इज थ्रू द ह्यूमन कैपिटल। कोई भी एक्टिविटी है वो ह्यूमन कैपिटल से ही कंडक्ट होती है। जब तक वो ह्यूमंस उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो एक प्रॉपर तरीके से अपनी एक कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल it includes all those inputs which are, just see page number 5.1, it includes all those inputs which are required for further production, like plant and machinery, factory, building, raw material. Okay, so these are all the inputs which are required for the production, means now production or for the further production, like plant and machinery, like factory, building, raw material. Like this way, all this physical capital, this is the physical capital. Okay, it makes use of physical resources, and it is necessary to earn the money through the physical capital, and its accumulation is quite important for economic growth of a country. अगर हमारे पास एक फिजिकल कैपिटल होती है
तो हमारी कंट्री की ग्रोथ निश्चित तौर पर होती है अगर हम सही तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं. ओके. So, but next is the human capital. Human capital, it refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge embodied in the people. Okay. Now, human capital means जो हमारे पास में एक skilled people, पढ़े लिखे लोग, able लोग, एक्सपर्टाइज, काम करने में अपने बिल्कुल एक्सपर्ट है ना, जैसे कि इंजीनियर है, अपने काम को करने में कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, चीजों कैसे चीजें ठीक करनी है, कहीं सड़क बन रही है उसमें इंजीनियर्स लगे हुए हैं, कोई आर्किटेक्ट है, घर को या हॉस्पिटल्स को, होटल्स को उनके नक्शे बना रहे हैं, कोई भी चीज जहां से मानी हर चीज अपनी सुविधा अनुसार है, तो वो एक्सपर्ट है हर चीज में. तो जो एक्सपर्टाइज होते हैं, डॉक्टर्स हैं अपने काम में एक्सपर्ट है, कोई बीमार है उसको ठीक कर लेंगे. अब जैसे ये कोविड-19 की प्रॉब्लम है तो इसको रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट, डॉक्टर सबके सब लगे पड़े हैं, तो एक्सपर्ट्स तभी तो ये सारे काम कर रहे हैं. और एजुकेशन, नॉलेज, जो ऐसे ये जो लोगों में एजुकेशन, नॉलेज, ये सब लोगों में एम्बॉडीड, ये सब क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल. और ह्यूमन कैपिटल हमें किसके लिए जरूरत पड़ती है? ताकि हम फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज कर सके, उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके. हम फिजिकल कैपिटल को, उसके लिए हम ह्यूमन कैपिटल को यूज करते हैं. ह्यूमन कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है फिजिकल कैपिटल को यूज करने के लिए. There is a need for investment in human capital to produce more human capital out of the human resources. Okay? Human resources सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज से अलग है. ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल तब बनता है जबकि वो ह्यूमन पढ़ा लिखा होता है, एक्सपर्ट होता है, स्वस्थ होता है, तो ही जाकर के वो एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होता है. कैपिटल का मतलब पता है आपको, अकाउंट्स में पता है, पढ़ा है आपने. कैपिटल मीन्स पूंजी, है ना. तो ह्यूमन पूंजी कब बनेंगे? जबकि वो पढ़े लिखे होंगे, वो एक्सपर्ट होंगे, साथ ही में वो स्वस्थ होंगे ना. क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर हम स्वस्थ है तो हम बहुत से काम करते हैं, हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, घर के बहुत सारे काम करते हैं अगर हम स्वस्थ होते हैं तो ऐसे ही अगर स्वस्थ इंडिविजुअल्स होंगे तो हम जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू द ह्यूमन capital. Okay. Societies need sufficient human capital in the form of competent people who have themselves been educated and trained as professionals and other professionals. In other words, we need good human capital to produce other human capital. साथ ही में हमें ह्यूमन कैपिटल इसके लिए भी जरूरत है कि आने वाली जनरेशंस और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करे. जैसे कि अगर एक पढ़ा लिखा कोई इंडिविजुअल है, एक्सपर्ट है वो, तो क्या चाहेगा कि उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो फैमिली है वो भी पढ़ी लिखी हो, स्वस्थ हो, उसके बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन मिले, साथ ही में वो अच्छी एजुकेशन ग्रांट करे. तो ह्यूमन कैपिटल हमें जरूरत पड़ती है आगे जो आने वाली जनरेशन है उनसे भी हम जो है आगे भी वो ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करें. या जैसे डॉक्टर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, उन सबको उन आगे की कैपिटल, उन आगे के ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए ना. क्योंकि खाली अगर एक ह्यूमन कैपिटल है, वो जब आने वाली जनरेशन को भी तो हमने उसी कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है कि जो और ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करा जाए. ओके, सो दिस वी हैव टू लर्न वेरी वेल, फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल. After this, a differentiation is being given between the physical capital and the human capital. Okay, just see this. Physical capital is tangible and can be easily sold in the market. So, physical capital क्या होती है? जो कि tangible है, which you can see, which you can touch, it is tangible and it is easily sold. Human capital is intangible and cannot be sold. ना, human capital को sale थोड़ा ना कर सकते. Individual sale के लिए नहीं होते हैं. हम उनकी सिर्फ services को use कर सकते हैं. Second is it depreciates with the passage of time. फिजिकल कैपिटल हमेशा समय के साथ में डेप्रिशिएट होगी ना. लैंड को छोड़ करके मशीनरी है, आपकी बाइक है, कोई भी ट्रैक्टर्स है, कोई भी चीज है, वो डेप्रिशिएट होती है समय के अनुसार. लेकिन डेप्रिसिएशन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ. जबकि ह्यूमन कैपिटल में हम डेप्रिसिएशन को कम कर सकते हैं अगर उनको लगातार उनकी हेल्थ में, एजुकेशन में बढ़ावा होता रहेगा. कहते हैं ना कि एजुकेशन का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, फ्रॉम द वॉर्म टू द टॉर्म, इट गोज ऑन कंटिन्यूइंग ना. और साथ में अगर हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन कम से कम होता है. उम्र तो बढ़नी बढ़नी, लेकिन फिर भी अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, अपने परिवार के लिए. नेक्स्ट इज इट इज मोर मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज. ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल मोबाइल होती है, यानी कि एक देश दूसरे देश में आसानी से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल. ह्यूमन कैपिटल मोबाइल होती है. मोबाइल का मतलब होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकती है. ह्यूमन कैपिटल भी मोबाइल होती है, लेकिन फिजिकल कैपिटल से कम होती है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो कहलाएगी दैट इज द मोबाइल ह्यूमन कैपिटल. लेकिन जो इंडिविजुअल्स यहीं रह जाते हैं वो मोबाइल नहीं होते हैं. तो मोबाइल होती है ये ह्यूमन कैपिटल, लेकिन फिजिकल कैपिटल से
कम मोबाइल होती है, उससे उससे कंपैरेटिवली कम यहाँ से वहां शिफ्ट करती है दूसरे कंट्रीज में। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने कोई मशीनरी खरीद ली तो जिसने उसको बनाया है वो अब वो मशीनरी हमारी हो गई है, अब उसका मतलब नहीं जिसने उस चीज को बनाया है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। कहते हैं ना किसी का हुनर कभी जाता नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज सीखी हुई है ना तो आप किसी भी हालात में उसको यूज करके अपना आप जिंदगी चला सकते हैं ना। तो फिजिकल ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, ये हम इसको ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर एंड इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, जबकि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द प्रोसेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल बनती है इसमें समाज का भी योगदान होता है, आपके आसपास एटमॉस्फेयर कैसा है, आपका परिवार कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, या आपने कौन सा अपने अचीवमेंट हासिल किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें डिफरेंस आपने लर्न करना है। नाउ come to the next one topic, meaning of the human capital formation. अच्छा, up to now anybody if wants to ask anything? मैम ह्यूमन कैपिटल क्या होता है हमें समझ में नहीं आया, ये मैं कंटिन्यूस चलती जाऊं तो कुछ ने कुछ पूछना है? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? Anybody wants to ask? No queries? Okay, I'm continuing with the next topic. Yes, no problem. हर्षमान, अरे फिर तो किसी को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. But it's good you asked the questions. It's good. I like that. Now, 5.2 topic, meaning of human capital formation. Now it will be in detail in the definition wise, what is the meaning of the human capital formation. Human capital formation refers to development of abilities and skills among the population of the country. Very important line, mark it. Okay. अच्छा, इससे पहले आपको मैंने बताया नहीं कि आपने क्या क्या मार्क करना है. आपने फिजिकल कैपिटल का मीनिंग मार्क करना है, इसके पॉइंट्स भी, ह्यूमन कैपिटल के भी और उनका कंपैरिजन भी, ये सब कुछ अपने नोट्स में लिखना है. नाउ द नेक्स्ट वन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग मार्क करिए. तो क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन यानी कि इंडिविजुअल्स, कैपिटल यानी कि पूंजी. ह्यूमंस को पूंजी में फॉर्म करना, फॉर्म मतलब कि एक प्रोसेस से चला है. ये बेटा एक दिन में कोई ह्यूमन कैपिटल नहीं बन जाती है या एक साल में नहीं बन जाती है. बचपन से बच्चा पैदा होता है, उसको वैक्सीनेशन दिया जाता है, उसको बीमारियों से दूर रखा जाता है, उसको अच्छी डाइट दी जाती है. फिर जैसे वो 3 या 4 साल का होता है उसको स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है. उसको स्कूल जाते ही लिखना नहीं बिठा दिया जाता ना, धीरे धीरे उसको पहले खाली ओरली पढ़ाया जाता है, फिर उसको हाथ से लिखना सिखाया जाता है ना, और फिर उसके बाद में उसको जो है एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे वर्ड्स फॉर्मेशन होनी, फिर क्वेश्चन आंसर्स आने, फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इस सिलेबस के हिसाब से जो है उसका जो है अपना फॉर्मेशन चलता रहता है. बच्चे का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग जो है सारा का सारा चलता रहता है ना. तो एक साथ में ह्यूमन कैपिटल नहीं बनती है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. सो इट इज रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज. एक ह्यूमन में एबिलिटीज और स्किल को डेवलप करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है ना. और सारी पॉपुलेशन में कंट्री के जब ये प्रोसेस होता है तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है. और ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस किसी देश के ह्यूमंस, इंडिविजुअल्स एजुकेटेड होते हैं तो वो देश तरक्की की राह पर बहुत चलता है. यहाँ पर भी बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ पर अपने इंडिया में, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन ड्रेन ना. ब्रेन ड्रेन क्या होता है? जब बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, पढ़े लिखे ना, सारी एजुकेशन यहाँ से करी, और जब वो अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन गए, जब उनको यहाँ पे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? दूसरे देशों में माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी जॉब, अच्छी सैलरीज, अच्छे इनोवेशंस का मौका मिलता है, जो कि यहाँ पे इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स इंडिया में नहीं है ना. नासा में मोस्टली साइंटिस्ट सब इंडिया से हैं. अमेरिका में आप देखते हैं कितने इंजीनियर्स काम करते हैं, कितने वो लोग इनोवेशंस करते हैं. बहुत से हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भारत के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिलते हैं, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इसलिए वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं. तो इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन ड्रेन. ये भी आप इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ही पढ़ेंगे इस चीज को. ओके, सो ये आपने मीनिंग कर लिया. डेफिनेशन है कि जिसके 2 पॉइंट्स लिखे ये भी आपने मार्क करने हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव द स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस.
यानी कि उस नंबर में बढ़ोतरी करना। अगर आज वो नंबर 1 लाख है तो अगले साल तक वो नंबर बढ़ के 1.5 लाख ज्यादा होना चाहिए। यानी कि इस नंबर में बढ़ोतरी करना, पढ़े लिखे लोगों में, स्किल्ड एजुकेटेड एक्सपीरियंस पर्सन में बढ़ोतरी करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। Human capital formation is associated with the investment in man and his development as creative and the productive resources. Okay? Human capital formation का मतलब है कि पीपल्स में इन्वेस्ट करना। आज आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक साउंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसा पैसा यूज करना जो कि हमें आगे जाकर के प्रॉफिट देगा। ऐसे ही जब आप आज पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, तो आप क्या होगा, आप आने वाले समय में अपने परिवार के लिए, आने वाले परिवार के लिए भी और जो अब परिवार है अपने पेरेंट्स के लिए भी आप अर्न करेंगे। इसीलिए आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो आपकी पढ़ाई पर पैसा इन्वेस्ट होता है, एजुकेशन पे पैसा लगाना इज अ साउंड इन्वेस्टमेंट। साउंड मतलब कि सबके सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वही मैंने बात अभी कही ना आपको कि आपका हुनर आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपने जो आज चीज सीख ली वो आपके अंदर हमेशा रहेगी। आज जो आपने स्किल्स अपने ऊपर डेवलप कर लिए, सपोज करिए अगर आज आपने कोई भी काम सीखा, कंप्यूटर सीखा है या आपने कुछ भी नॉलेज ली है, तो वो आपके साथ में हमेशा रहेगी अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ना। तो इस तरीके से जो ये इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे है, ये एक साउंड इन्वेस्टमेंट है। तभी आज सभी के सभी पेरेंट्स इस पे बहुत ज्यादा अपना एक कंसंट्रेशन रखते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं इसके लिए। नाउ नेक्स्ट इज द टॉपिक इज द सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनती है, कैसे वो ड्राफ्ट आउट होती है, उसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ओके। यानी कि सबसे पहला जो फॉर्म है किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल बनती है, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यानी कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन में, उस पे जो पैसा खर्च होता है ना, जिसमें जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जब आप उसकी एजुकेशन एक्वायर करने में अपना पैसा खर्च करते हैं, आपके पेरेंट्स अपना पैसा खर्च करते हैं, तो वो कहलाता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हाँ, और इसी तरीके से जिस तरीके से आज पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन में पैसा खर्च करते हैं, ये सेम उसके है जब एक कंपनी अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशीनरी परचेज करती है ना, जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन भी उसी तरीके से है, क्योंकि मशीनरी भी रिटर्न देगी लेकिन वो एक दिन डेप्रिशिएट हो जाएगी, लेकिन आप जो रिटर्न देंगे वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होगा। आप एक बार जब अर्न करना शुरू करेंगे तो टिल डेथ यू विल बी अर्निंग, सो इट गिव्स यू रिटर्न एज मच। जो आज आपका आज पैसा लगा है आपका, वो तो पता नहीं आप 1-2 साल में ही पूरा कर लेंगे जब आप अर्न करना शुरू करेंगे। तो अंटिल डेथ वी आर गोइंग टू अर्न ना। तो इस तरीके से जो आपके एजुकेशन पे जो आपका पैसा खर्च होता है, ये आपको काफी ज्यादा रिटर्न देता है, और इसीलिए ये सबसे पहला हमारा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बनाने का। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, then it will create problem of terrorism, as you see in this, mainly in this problem is in Kashmir, as the why the most of the people have become terrorists over there. Why? Because they are not having any opportunities, no employment opportunities, no educational facilities. So that's why terrorism takes place. So to and also there is social unrest. दिमाग में चैन तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि आप जो है इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहीं से तो पैसा आना चाहिए, खर्चे तो अपने चलाने हैं ना। तो उसके लिए भी जो है जरूरी है कि आप एजुकेशन पे पैसा खर्च करा जाए। एंड एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू, यस यस यस, हाँ बेटा होता तो है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना, हाफ बेक्ड भी होते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन तो कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन करिए 33% से, अब कंपनी आपको क्या देगी भैया उसके लिए, जब आप उनके लिए कुछ रिटर्न ही नहीं दे रहे हैं। तो आपने वो एजुकेशन प्रॉपर तरीके से भी अटेन की हो ना, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। व्हाट माई पॉइंट है ना। अब मान लीजिए अब यही है 12th की पढ़ाई, 12th के मार्क्स है, पास 33% पास परसेंटेज है ना? लेकिन आप खुद सोचिए, जिसने 33% या 40% लेकर के आ रहा होगा, उसने क्या पढ़ाई करी होगी। आप उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अपनी क्वेरीज पूछे, अकाउंट से क्वेश्चन पूछे, इकोनॉमिक्स से, क्या वो बता पाएगा? नहीं, पास परसेंटेज रख दी गई ना। अब अगर आपने अपने पूरा फुल अटेंशन दिया है अपनी स्टडीज को, तो जरूर आपको उसका रिटर्न मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। सबसे साउंड इन्वेस्टमेंट इसमें यहाँ पर है ना। ये हम पे भी तो डिपेंड करता है कि हमने उस एजुकेशन को कैसे अटेन किया, हम उसके बाद कितनी मेहनत कर रहे हैं। समझ में आई बेटा बात ना। आप 12th कर रहे हैं, आप बिल्कुल लास्ट में 1 महीना पहले, 2 महीना पहले किताबें लेके बैठते हैं, तो आप क्या मार्क्स अटेन करेंगे? मुश्किल से पासिंग मार्क्स अटेन करेंगे आप।
हाँ, और वहीं अगर आप शुरू से पढ़ाई करते हैं, शुरू से अपनी क्वेरीज को क्लियर करते हैं, आप अपने हर एक चैप्टर पे ध्यान देते हैं, श्योर आप 80-90% स्कोर करेंगे और आपकी नॉलेज भी ज्यादा होगी। और जब ये सब चीजें आपको आगे आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आगे आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको सब चीजें बड़े काम आती है ना, वो सारी चीजें। हाँ, तो आपने उसके लिए कितना अपना इनपुट दिया, उसके हिसाब से आपका आउटपुट निकल करके आता है ना। आप किसी कंपनी में अगर अपना अपना अच्छा दी बेस्ट देंगे तो आपको उसका रिवार्ड क्यों नहीं मिलेगा, है ना। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आई बात? ओके। सो एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इट कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी, ये सब मैंने बता दिया है आपको। इनोवेशंस होती हैं, इससे न्यू टेक्नोलॉजीज है, बेटर चॉइसेस ऑफ लाइफ, सेफ हम अपने आप को अपने आसपास सफाई रखते हैं। अगर पढ़े लिखे होते हैं तो हमें खुद पता है कि अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हमें बीमारियां लग सकती हैं ना। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज कंपल्सरी एंड इट इज अ फर्स्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेकिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Now the second point is expenditure on health ना। एजुकेशन के बाद में आता है हेल्थ। कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी कहावत है, अ साउंड माइंड रेस्ट इन अ साउंड बॉडी। एक अच्छा दिमाग, एक स्वस्थ दिमाग कहाँ पे होता है? एक साउंड बॉडी में। अगर आप खुद स्वस्थ है तो, अगर आज मैं बीमार हूं ना तो मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करेगा ना, और आप भी, पढ़ाई भी नहीं होगी आपसे। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप हर काम करने में सक्षम है। तो ये जरूरी है कि हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखें जिस तरीके से हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आपके पेरेंट्स, आपको याद होगा जब आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, ध्यान रखते होंगे बेटा ठंडा नहीं खाओ, एग्जाम्स हैं, गला खराब हो जाएगा, कैसे पढ़ाई करोगे। बहुत ध्यान रखते हैं पेरेंट्स इस चीज का ना। और उसी तरीके से हमें भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि जो है हम स्वस्थ रहें, क्योंकि एक स्वस्थ इंडिविजुअल्स ही एक इकोनॉमी के लिए, एक कंट्री के लिए एसेट्स के रूप में काम करते हैं। एसेट्स यानी कि संपत्ति के रूप में काम करते हैं। हाँ? तो अब यहाँ पे जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम मेनली जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के, उस चीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। A sick laborer without access to medical facilities is compelled to abstain from work and there is loss of productivity. अगर आपका स्वास्थ्य खराब है और आप अंडर नरिश्ड हैं ना, तो आपकी जो लोगों की मैन पावर है, मैन पावर यानी कि जो आपकी क्षमता है काम करने की, उसको वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और अगर लेबर सिक है कंट्री की तो क्या होगा, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है तो वो काम से एब्सेंट रहेंगे, प्रोडक्शन पे लॉस होगा। जैसे अब देखिए कितने लोग जो है लॉकडाउन की वजह से अपने गांव चले गए हैं, है ना। तो अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे देखिए आप सामान सारे के सारे ये जो मेनली जो फैक्ट्रीज में सामान प्रोड्यूस होता है वो सब का सब बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि लेबर नहीं प्रोड्यूस करने के लिए, हार्डली 30% लेबर है प्रोडक्शन करने के लिए। हाँ, तो जो है अगर वो ऐसे ही अगर लोग बीमार रहेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर। इसलिए बहुत जरूरी है कि एजुकेशन सॉरी हेल्थ पर पैसा खर्च करा जाए, ताकि जो लेबर फोर्स है या जो मैन पावर है हमारे देश की, वो स्वस्थ हो और प्रोडक्शन करने में हेल्प करे। क्योंकि बेटा प्रोडक्शन तो मेनली लेबर से ही होगा ना। अब स्कूल्स बने हुए हैं, बिना टीचर्स के स्कूल में प्रोडक्शन नहीं होगा, सॉरी बिना स्कूल्स के बिना टीचर्स के स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, है ना। ऐसे ही कोई भी फैक्ट्री है, उसमें ओनर तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ना, सबकी सब लेबर प्रोडक्शन कर रही है। तो ह्यूमन पावर तो बहुत जरूरी है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, किसी कोई भी सर्विसेज देने के लिए। Adequate food and proper nourishment to people along with adequate health and sanitation facilities lead to quality improvement in the human capital. कि अगर जो है सही तरीके से खाने की व्यवस्था और लोगों को पूरा नरिशमेंट, पूरा पोषण मिलता है तो, और अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज मिलती हैं, तो लोग जरूर स्वस्थ भी रहते हैं और साथ में हेल्दी भी रहते हैं। और जो सरकार ने ये कुछ हेड्स बनाए हैं ये इसके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो है जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन नोन एज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है जब बच्चा बॉर्न होता है, तभी से वैक्सीनेशन लगती है अप टू द 15 ईयर्स। फिर क्यूरेटिव मेडिसिन है, आपको बुखार आया है, खांसी है ना, कोई मलेरिया वगैरह हुआ है, आपकी दवाई है, ये है दैट इज नोन एज अ क्यूरेटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मतलब होता है बीमारी होने से पहले ही उसका इलाज करना, वैक्सीन। क्यूरेटिव जो बीमारी हुई तो उसका क्योर हो रहा है। सोशल मेडिसिन, लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी के बारे में जागरूक करना कितना जरूरी है, ये इसे बोलते हैं सोशल मेडिसिन, यानी कि जागरूकता करनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर घर में कोई बीमार है तो हम उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए, जबकि ना कि वो कोई भयंकर बीमारी का रूप ले ले। तो ये जरूरी है कि मुझे हेल्थ लिटरेसी होनी चाहिए लोगों में। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लोगों घर में साफ पानी अवेलेबल होना चाहिए या आसपास में
क्योंकि पानी से ही बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं गंदे पानी से। और लास्ट में यहाँ पर है गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज, घर में टॉयलेट होना, उनका सही से निकासी होना, कहीं बाहर ऐसा डंप कूड़ा ना पड़ा हुआ, ये सब सैनिटेशन फैसिलिटीज बहुत जरूरी है। हाँ, तो खाली स्वस्थ रहना ही नहीं है, ये जो बाकी चीजें हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये सब कुछ ही बहुत कंपलसरी है हेल्थ के लिए। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को बनाने का, क्योंकि इन बाकी भी और 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो दो ये मेन मैंने आपको पढ़ाई, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेक द ह्यूमन कैपिटल formation, to make the human capital. Why? Because education makes a man skilled, expertise, and health makes a person able to work. ना अब आप able तो हैं, सॉरी अब आपने एक्सपर्ट तो है, लेकिन आपका क्षमता नहीं काम करने की, आप बीमार हो चुके हैं, तो आप कैसे काम करेंगे? सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको ये सारे ही पूछ सकते हैं, कोई एक भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स। अच्छा, अभी हमारी मीटिंग लगभग एंड होने वाली है, किसी ने कुछ अगर पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है।